everyone. We have with us today Professor Dr. Urvesh Chaudhary, Professor of Center of Management Studies, NAC, and IQAC Coordinator, Program Coordinator at Geeta International Business School, New Delhi, India. She is PhD in HR from Gautam Buddha University, Greater Noida. She has vast experience of more than 27 years in the field of software development, academics, projects and placement. In her software development lifespan, she worked on 18 projects. One of the major projects done by her is Material Requirement Planning, MRP, including Bill of Material, Purchase, Receiving and Inspection, Stores, Production Planning and Control, and Dispatch of Goods for Indication Instruments Private Limited, Faridabad. Her area of expertise includes organization behavior and human resources, entrepreneurship development and research methodology. She has authored 3 books on organization behavior and management process, research methodology and quantitative techniques, and consumer behavior. 6 edited books are also published till dates by her. 5 students have completed their PhD under her guidance. She is the member of advisory board of Sharda University. She is also the associate editor and editor of UGC approved New Era Journal and the blind peer reviewed Primax Journal. Besides that, she is also the paper reviewer for Inder Science Management Journal. I would now like to call Professor Dr. Urvesh Chaudhary to enlighten us on the topic data analysis using SPSS, descriptive statistics, correlation, simple and multiple leads. Right? Starting from the base, how we will be basically using the SPSS from opening of the SPSS software. So before I come to the software, first understand, once you have written your introduction and literature review is done by you, the next step is basically collection of data. There are 2 types of data collection methods. One you can take as the primary method because there you are circulating some survey form, Google form or some questionnaire in the form of hard copies or emailers. Anyway, the way how you can send your questionnaire to the population or the target population and you can collect the data from them and it comes to you. Number 2 is your secondary data where we are collecting the data either through the magazines, through the websites, through the some another researchers who have already worked on that particular topic and collected the data, some government agencies which are already collected data there, some portals or some websites from where we can get the data. So we have to work on either of the one. Either I will be working on the primary data or I will be working on the secondary data. So when I talk about the secondary data, no problem in that. Because secondary data को मुझे पता होना चाहिए what is the source of that particular data. I can go to that source and I can pick up the data from there. और आजकल तो हमारे पास Kaggle जैसी sites हैं जहाँ पे data sets बने बनाए हमें मिल जाते हैं. Means अगर मेरे पास कोई topic है और मैं उस topic से related data चाहती हूँ and I don't have to collect that particular data, I can go to the site, I can register myself using my email ID, I can have the free access to that particular site and get the data set from there. They'll send you the data set, you can access the data, you can clean the data and take out the data which is required by you and then you can use that particular data to basically write or analyze the data and then you can write your paper accordingly. तो आप डेटा के बेसिस पे भी कई बार ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं. अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उस समय आपको जिस टाइप का डेटा मिल रहा है उसके बेसिस पे भी काम कर लेते हैं कई बार अगर हमारा पहले से ऑब्जेक्टिव नहीं है. दैट मीन्स रिवर्स इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज केसेस बट दैट इज ओनली फॉर द एकेडमिक रिसर्च. एकेडमिक के अलावा हम किसी और टाइप की रिसर्च में उस पर्टिकुलर टाइप नहीं करते हैं. अब दोनों ही केसेस में क्या हुआ, हमारे पास डेटा जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो डेटा इज व्हाट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. आई एम हैविंग द डेटा बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. दैट डेटा कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय मी. भाई मैंने बिट्स एंड पीसेस में कोई डेटा कलेक्ट कर लिया तो क्या मैं उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बट कन्वर्ट करने के लिए आई हैव अ प्रोसेस to convert that particular data which I have collected into information. To convert the data into information, I have a certain process to get the result out of it.
तो उसके लिए क्या है, जब मैंने है ना सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड आई सेड दैट प्लीज फिल दिस क्वेश्चनर। आपने जब क्वेश्चनर फिल किया तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग 90% डेटा जो है, मैं ये मान के चलती हूँ मेरे पास एक्यूरेसी से डेटा फिल होके आता है, पर 10% चांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपने डेटा या तो ढंग से पढ़ के नहीं आपने उस डेटा का आंसर किया है, या फिर आपने है ना रैंडमली डाल दिया, हो सकता है कुछ गलत डेटा फिल कर दिया, कुछ ही नहीं डाली तो डेटा मिस कर दिया। सो आई कैन हैव द मिसिंग वैल्यूज, आई कैन हैव द एक्सट्रीम वैल्यूज, ईदर इट इज एट द लोअर साइड एक्सट्रीम वैल्यू और एट द हायर साइड एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसका मतलब जो डेटा मेरे उस पर्टिकुलर डेटा का क्रक्स है, अगर मैं सारे डेटा को एवरेज आउट करूँ, एवरेज आउट करने पर्टिकुलर डेटा जो है उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल दूर जा रहे हैं, ईदर एट द हायर साइड और एट द लोअर साइड, तो ऐसे हम डाटा के पॉइंटर्स को हम बोलते हैं आउटलायर्स, मतलब दे आर नॉट फिट इनटू माय पर्टिकुलर डेटा। तो जब भी हम लोग SPSS में काम करेंगे तो हम पहले अपने डेटा को क्लीन कर लेंगे, हम अपने डेटा को क्लीन कर लेंगे। मिसिंग वैल्यूज का डेटा हटाने का तरीका क्या है हमारा, कि या तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, अगर आपको लग रहा है कि उस डेटा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते तो डेटा को बिल्कुल ही हटा दीजिए, दैट मीन्स रिमूव दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, एक रेस्पोंडेंट का डेटा। व्हाट इज रिकॉर्ड, एक रेस्पोंडेंट का डेटा, या तो आप पूरा उस रेस्पोंडेंट के डेटा को वहाँ से रिमूव कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है कि आपने देखा कि वो क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है कि अगर उसकी वैल्यूज को इधर उधर ना करके न्यूट्रल वैल्यू डाल दूँ तो मुझे उस पूरे रेस्पोंडेंट को हटाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेस्पोंडेंट को हटाने का मतलब क्या है, आई एम रिड्यूसिंग माई डेटा सेट। रेस्पोंडेंट जो है आपको पता ही है, जिन लोगों ने रिसर्च किया है, कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। सो इट इज़ बेटर इफ यू कैन पुट सम न्यूट्रल वैल्यू ओवर देयर विच विल नॉट इम्पेक्ट योर रिजल्ट्स। जो बाकी लोगों का डेटा हमने रिसीव किया है, दैट रिजल्ट इज नॉट इम्पैक्टेड, देन व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द न्यूट्रल वैल्यू ओवर देयर। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी आर यूजिंग द लिकर्ट स्केल, मीडियम पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट। उसके ऊपर आपका हायर साइड को मूव कर देते हैं, जैसे हमने लिखा था एग्री स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री। तो हमारा क्या है, हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट इज नॉट इफेक्टिंग ईदर एट द पॉजिटिव साइड नॉर एट द negative side. So I can replace that particular data over there and I can clean my data. कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट नहीं आता है, तो हम वहाँ पे उसको रिप्लेस कर लेते हैं। आउटलेयर्स को हटाने के लिए we have a one way methodology, computed methodology which is available in all the softwares. हमारा जो SPSS है उसमें हमारे पास है, उस आउटलायर्स को हटाने के लिए we have an explore method. एक्सप्लोर करने से क्या होता है, we get one particular diagram, I'll tell you how we do it, और डायग्राम के बाद में जो हमारे आउटलायर्स होते हैं उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा आ जाएगा वो क्लीन डेटा आ जाएगा। अब जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सपोज आई एम कलेक्टिंग द डेटा यूजिंग द गूगल फॉर्म्स, तो डेटा किस फॉर्म में आएगा, CSV फॉर्मेट में आएगा। द डेटा विच विल कम टू मी विल बी इन द CSV फॉर्मेट। अब CSV फॉर्मेट में जब मेरे पास डेटा आया तो द डेटा विल कम इन द फॉर्म ऑफ ईदर स्ट्रांगली एग्री लिखा है, डिसएग्री लिखा हुआ है, स्ट्रांगली डिसएग्री लिखा हुआ है, जो भी मैंने ऑप्शंस दिए थे उनकी जो वैल्यूज है वो लिखी हुई आती है। आई कैन नॉट डू द कैलकुलेशंस ऑन द स्ट्रिंग वर्ड्स। इसका मतलब मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई कैन नॉट यूज द डेटा एज इट इज इन द फॉर्म, आई एम गेटिंग द डेटा इन द CSV फाइल, सो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड। अब उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू द कोडिंग। टू कन्वर्ट द डेटा आई नीड टू डू द कोडिंग ऑफ द डेटा। अब डेटा को कोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू गिव न्यूमेरिक वैल्यूज, स्पेसिफाइड न्यूमेरिक वैल्यूज विद इक्वल इंटरवल्स। व्हाई आई एम यूजिंग एंड फोकसिंग ऑन द इक्वल इंटरवल्स, बिकॉज अगर मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं और 1 to 5 मूव ऑन करना है मुझे, तो सबके बराबर में वेटेज का जो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए। मतलब अगर लोएस्ट वैल्यू की वैल्यू मैंने 1 ली है तो उससे नेक्स्ट वाली जो है वो 2 होगी, उससे नेक्स्ट 3 होगी, उससे नेक्स्ट 4 होगी, उससे नेक्स्ट 5 होगी, एंड सो ऑन, व्हाटएवर माय स्केल इज। सो आई हैव टू डू द कोडिंग पार्ट वेरी केयरफुली। Many times it happens when I'm collecting the data and I'm seeing that my respondent is of that kind. Mostly the students, those don't want to give the data after reading my questionnaire.
तो ऐसे केस में क्या होगा, जो डेटा होगा वो क्या करते हैं, टिक टिक करते हैं, अच्छा हाईएस्ट वैल्यू को टिक कर दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कर दिया और मेरे पास क्वेश्चन आर भर के आ गया। ऐसे केसेस में मुझे जब डेटा क्वेश्चन आर प्रिपेयर करना होता है तो उस समय पे मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन आर को दोनों फॉर्म में रखती हूँ। एक बार क्वेश्चन मैंने पॉजिटिव फॉर्म में पूछ लिया, दूसरी बार मैंने क्वेश्चन आर में नेगेटिव फॉर्म में पूछ लिया। तो क्या होगा, अगर वो आंख बंद करके फिल कर रहा होगा तो मुझे दूसरे क्वेश्चन के टाइम पर पता चल जाएगा कि उसने गलत आंसर दिया। मतलब the answers which are waiting are superficial answers, so they will not contribute to my research। ठीक है, ज़्यादातर जब भी हम एजुकेशन की रिसर्च करते हैं, तो हम क्वेश्चंस को दोनों फॉर्म में रखते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है, हम लोगों ने क्वेश्चन आर सर्कुलेट किया तो स्टूडेंट क्या करेगा, हाईएस्ट तो हाईएस्ट 5 5 5 5 5 5, मतलब ही इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, so he is not giving the answer in an accurate manner, so my research results cannot be generalized। so what I will do, I will have the, ठीक है 20 की जगह मुझे 40 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, बट आई विल कीप द रैंडम क्वेश्चन मिक्सड विद ईच अदर, कि कोई फ्लो ना बने, कोई पैटर्न ना बने, और उसको पढ़कर ही आंसर करना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मली जब हम कंपनीज में कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं तो उस समय भी हम लोग क्वेश्चन आर ऐसे ही बनाते हैं। जब एम्प्लॉय को हम कॉम्पिटेंसी का फॉर्म देते हैं भरने के लिए, बिकॉज वी आर डूइंग द कॉम्पिटेंसी मैपिंग ओवर देयर, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू आंसर इन सच अ वे, एंड वी आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस इन डिफरेंट फॉर्म्स, सो दैट ही इज गिविंग यू द राइट काइंड ऑफ आंसर, एंड वी आर एबल टू टेक आउट द राइट काइंड ऑफ आंसर। और ऐसे में हम बताते नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ को बताते नहीं कि आपने क्वेश्चन गलत भरा, हम तीनों का एवरेज आउट कर देते हैं। तीनों का एवरेज आउट करते हुए वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो उसका एक्चुअल रिजल्ट्स आने होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वे हाउ वी कैन कलेक्ट द मेथड। वंस माई डेटा इज रेडी एंड आई हैव डन द कोडिफिकेशन ऑफ द डेटा, कोडिफिकेशन ऑफ डेटा में जैसे मेरा, बिकॉज एक्सेस में ले लूँ, MS एक्सेस में ले लूँ, या फिर मैं एक्सेल में ले लूँ, या मैं किसी भी फॉर्मेट में ले लूँ, डेटा जब मेरा स्टोर होता है तो ऐसे ही आता है। मैंने उसके कोड्स डिफाइन कर लिया और कोड से क्या किया, वन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्ट्रिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, तो आई एम हैविंग द डेटा इन माई एक्सेल शीट। Right? Now we come to SPSS. How we will be working with the SPSS? हमारे पास जो लैब में है वर्जन वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन it works well. So SPSS को हम we can the application of SPSS की बात करूँ, it can be used by the market researchers, health researchers, survey companies, government education researchers, marketing organization, and think of any sector or any company, they are making use of the SPSS now. Because आज मार्केट में जो जॉब्स हैं वो भी आपकी 80% मार्केट जॉब्स आर ऑफ एनालिसिस की जॉब मिलेंगी आपको। मार्केट एनालिस्ट चाहिए, HR एनालिस्ट चाहिए, क्वालिटी एनालिस्ट के बिना तो काम ही नहीं चलता। प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग यूज कर रहे हैं SPSS को आजकल, बिकॉज जितने भी वर्क एलोकेशन हम लोग मेथड्स आपके OR में पढ़ते थे, they are basically can be solved over here, so we can make use of it. So या तो हम एडवांस एक्सेल यूज करते हैं या SPSS यूज करते हैं, because they are readily available. Now we come to the what can be performed with the SPSS. So we can perform the descriptive statistics. When I talk about the descriptive statistics, it can be frequencies, descriptive explore, descriptive ratio statistics. We can perform with it. Then bias की बात करेंगे, we can do means, t-test, ANOVA, correlation, that is bivariate partial distances, non-parametric test, parametric test. Then prediction for numerical outcomes में linear regression, logic and probability analysis, structured equation modeling can be done. Prediction for identifying groups की बात करेंगे तो factor analysis, cluster analysis, उसमें दोनों आएंगे आपके two-step के means, hierarchical and discriminant analysis can be done. और अब तो हम टाइम सीरीज एंड डायरेक्ट मार्केटिंग टेक्निक्स को भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इसके अंदर। सो पहले हम लोग क्या करते थे, जब हम लोगों को कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करना होता था तो अमोस यूज करना पड़ता था। अब इसमें इनबिल्ट है, जो लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं, लैब वाले नहीं हैं हमारे पास, ठीक है। सो दीज वर द स्लाइड मेड व्हेन आई वाज हैविंग 19, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, सो स्लाइड्स आर सेम, बट नीचे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे दैट विल बी ऑन द वर्जन व्हिचएवर इज अवेलेबल इन दी It's same. जब आप ओपन करते हैं तो you are having two options over there. आपका एक लाइसेंस ऑथराइजेशन का ऑप्शन आता है और एक आपका स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन आता है। जब आप प्रोग्राम में जाके क्लिक करेंगे SPSS, तो क्लिक ऑन दी SPSS
लाइसेंस वाला नहीं क्लिक करना, दूसरे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो you will get this particular screen. So you can select the data and go into the SPSS software. So this is how it looks. बिल्कुल जैसे एक्सेल की शीट होती है ना, MS एक्सेल की शीट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये लगता है, आपके रोज एंड कॉलम्स. बस डिफरेंस क्या है, आप जब you are working in your Excel at that time you have the A, B, C, D, E, F, है ना? Those are replaced by VAR because here the variable name comes. जब आप इसको फाइल क्रिएट करेंगे, you will get the variable name over there. बाकी 1, 2, 3 is same and it is having only one sheet. In Excel we have multiple sheets now and we can create a lot many of sheets. Here we have only one sheet. Otherwise the look and feel is like a Excel software only. Data view, another one is the variable view. The most important part, because if you are not having any, you have not collected online data and it has been collected directly by you in the hard copy, तो हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी में कलेक्ट किया तो हम डायरेक्टली डेटा के साथ डालेंगे, हमें कहीं से इंपोर्ट तो करना नहीं है. सो उस केस में भी, और अगर हमने डेटा किसी और से हमने किसी और मेथोडोलॉजी से क्रिएट किया है तो भी हमें फाइल का स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा. We have to create the file structure and define the variables So when I am talking about this, these are the variable height, gender. These are the variables height and gender. So what view you are seeing is the data view because you are able to see the values. This is the respondent number 1 whose height is 66, gender is 1. I'll tell you why we are writing the 1 and 2. Similarly 2, height is 68, gender is 2 because we have done the codification of the gender. Gender में आपका 1 is male and 2 is female. तो हमने उसको क्या किया, हमने codification कर दिया मेल और फीमेल का. So 1 is representing your male and 2 is representing your female. So this is 66 male, 68 female, 72 female, 66 male, 69 female. So this is the way how it is representing the data. Now you can save the data same way जैसे आप लोग बाकी फाइलों को सेव करते हैं, but इसका जो फाइल बनता है that is SAV. Extension is SAV. You will be saving the data in the form of that. Data entry, coding and cleaning थोड़ा सा क्लिक, 2-4 स्लाइडें हैं, move on कर लूँगी fast. So I've already told you. So before describing the process for defining variables, an important distinction should be made between the two terms, that is your variable and value. ये दो चीजें हम लोग यहाँ पे important क्यों है? Because data view में जो हम डाल रहे हैं that is value. जब हम variable view में जाके किसी variable को create कर रहे हैं that is variable name. But उसकी जो value आ रही है that is value. तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि whenever I am coming to the data part, I am basically having a look on the values of the variables. So this is your data view and this is your variable. Data view पहले देख चुके थे हम लोग, variable view पहली बार देख रहे हैं. Variable view में हम जब जाएंगे तो we will be having the name of the variable. Remember, in the name of the variable, no space is allowed. When you are writing a name of the variable, if you want to write student roll number, and you want to distinguish student with roll number, so you will be using only underscore. You will be using only the underscore. So st underscore roll number. ठीक है? तो आप हमेशा यहाँ पे, this is the name of the variable, this is the type of the variable. Type of the variable अभी आगे मैंने डिटेल में भी डाला हुआ है. It can be numeric, string, date, or currency, any type. With and this is decimal. Whenever I am having a numeric variable, I can have the decimal points also. है ना? जैसे suppose मुझे डालना है 2000.45. This is my, मतलब 3 तो डेसिमल के बाद में वैल्यूज आनी चाहिए और सपोज 5 वैल्यूज जो है वो मेरी उससे पहले आनी चाहिए. तो टोटल कितनी बनेगी? 5
एक डॉट डेसिमल पॉइंट के लिए और 3 बाद में, तो 4 और 5 9। तो मुझे टोटल जो न्यूमेरिक लेंथ मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट विल बी 9, बिकॉज डेसिमल आल्सो टेक अप 1 स्टोरेज बिट। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे एक देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विड्थ इज 4, डेसिमल इज 0। लेबल में जो दिखना चाहिए, whenever I am doing the processing of this particular data, at that time I will not be getting ID, I will be getting employee code. That means this is the value which will be displayed. Label is the value which will be displayed. This is value which I have to define. जैसे हम लोगों ने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था, we were defining the gender. तो जेंडर में क्या था, I was having the male or female. So I can specify these values 1, 2 over here, 1 for male and 2 for female. Missing value none, क्योंकि missing values हमें चाहिए नहीं होती है, वैसे भी normally we keep it none. एक column width जो यहाँ दिखाई दे रही है, this is column width. This is column width, ID 4 characters ही दिखा रहा है. Gender आपका by default कितना है यहाँ पर? Gender is 7. तो ये वाला जो width है ये 7 है. उसके बाद ये आपका 13 है, तो ये जो width है ये 13 है. तो कॉलम में कितना डिस्प्ले दिखना चाहिए, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द कॉलम विथ अलाइनमेंट राइट लेफ्ट सेंटर, जैसे भी आपको रखना हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेजर, दैट इज स्केल. इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू वी हैव अ नॉमिनल स्केल, वी हैव अ इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, वी हैव इंटरवल स्केल एंड वी हैव द रेशियो स्केल. तो यहाँ पर आपका स्केल के अंदर whenever I talk about the scale, there are only 3 points available, that is nominal scale, ordinal scale और ratio और interval के लिए एक ही होता है, that is scale. ठीक है, तो depending upon what you choose, इस variable का कौन सा टाइप का मेजर है जो आप यहाँ चूज करो, इसके अकॉर्डिंगली ही वो फंक्शन करेगा. When you will be doing the analysis, at that time it will work on the basis of what type of measure has been specified by you in this file. जब आपने इसको डिफाइन किया है तब आपने जो उसको मेंशन किया होगा वही आप कर पाएंगे. ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं. नेम में each variable name must be unique, duplication is not allowed. Start with a letter, may have up to 8 characters including letter numbers and the symbols, these are allowed. Variable names cannot end with a period, डॉट नहीं लगा सकते लास्ट. ठीक है, देन वेरिएबल नेम दैट एंड विद एन अंडरस्कोर शुड बी अवॉइडेड. लग तो जाएगा बिकॉज वो एक्सेप्ट कर रहा है बट उसको यूजलेस है, वो किसी फायदे का नहीं है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए. द सर्टेन कीवर्ड्स आर रिवर्स्ड एंड मे नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, दैट इज कंप्यूट, सम, बिकॉज दे आर द सिस्टम वेरिएबल्स. वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो कई बार रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले नहीं होते. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द टाइप, बेसिक टाइप्स जो हम यूज करते हैं दैट इज न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग्स. मैक्सिमम बिट फॉर द न्यूमेरिक वेरिएबल इज 40 कैरेक्टर्स एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल पोजीशंस अलाउड इज 16. ये याद रखने की जरूरत है. String variables may contain letters or numbers. For string values, a blank is considered a valid value. Numeric operations on the string variables will not be allowed. That is mean, variance, standard deviation, ये सब नहीं कर सकते आपके. So this is whenever I click on the variable type pointer, this dialog box comes. तो इसमें आपके सारे types दे रखे हैं. It can be numeric, it can be comma, it can be dot, it can be scientific notation, date, dollar, custom currency, string. यहाँ पे अगर आपका न्यूमेरिक है तो उसका बिट और डेसिमल प्लेसेस भी आएंगे, और अगर आपने कॉमा ले लिया तो वो पूछेगा कौन सा वाला कॉमा आपको किस प्लेस पे लगाना है. इसी तरीके से डेट में कौन से फॉर्मेट में आपको डेट लेनी है, तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस आते चले जाएंगे. सो वी हैव टू गिव द डिटेल्स ओवर हियर. सो if you select a string variable, you can tell SPSS how much room to leave in the memory for each value, indicating the number of characters to be allowed to data entry in the string variable. So it can be mentioned. Similarly is the width case. मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से width काम करता है. Decimals, then labels. Label में आप 255 characters तक का वैल्यू दे सकते हैं. Although हम लोग कोशिश करते हैं जितना शॉर्ट दें उतना अच्छा है. Because if I am making the charts or if I am making some type of data where long values may create a problem for me,
So लेकिन you can give the data up to 55 characters. Then values, these indicate how the numbers are assigned for categorical data. So instead of typing into the computer the full answer to each question, codes can be written. जैसे female का 1 if the respondent is female, 2 if it is male. खाली मैं उसका representative जो भी मैंने उसकी codification में value दी है उसको write करूँगा. That is more easier for me to do. So codes are usually numerical because this is what most statistical software expects and easy to do the calculations over there. अगर मैं string ले लूँगी तो उसमें calculations नहीं कर पाएगा. It will act like a nominal only. So now we come how to write the values. So the value labels will be used whenever you will click on the inverted triangle over there. अभी हम जब variable view देख रहे थे तो साइड में एक inverted triangle साथ में बना हुआ था. सब लोग अपने फोन में बड़े आराम से लिखते हैं. तो inverted triangle को आप क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद you go to this, write down the value name over here and accordingly write the value name. जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, वैल्यू नेम में मैंने फीमेल टाइप किया, ये ऐड हाईलाइट हो जाएगा. मैं ऐड पे क्लिक करूँगी, दिस वैल्यू विल कम ओवर हियर. अनदर 2 देन मेल. ऐड क्लिक करूँगी, ये यहाँ आ जाएगा. तो इस तरीके से. और अगर मुझे डिलीट करना है, सेलेक्ट दिस हियर, रिमूव विल गेट हाईलाइटेड. आई क्लिक ऑन रिमूव, इट विल बी रिमूव. सो आई कैन ऐड एज मेनी नंबर ऑफ डेटा आई वांट टू ऐड. राइट? So this is the way how the data view by clicking the 2 tab. तो नीचे data view को क्लिक किया मैंने और वहाँ पे जो values मैंने डाली थी. तो अगर मैं 1 वैल्यू डाल रही हूँ, it is equal to female. 2 डाला मैंने, it is equal to male. तो इस तरीके से मेरा data actually I am feeding in this form and it is represented in this particular. Then we come to the missing values. So it is a signal to spaces which data should be treated as missing. कई बार कुछ values ऐसी होती हैं जिनको हमें है ना दिखाना है कि जब सिस्टम जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशनल वर्क कर रहा है या फिर है ना अपना कंप्यूटेशनल वर्क कर रहा है, उस समय वो सिस्टम वैल्यूज को लेगा. तो हम जब मिसिंग वैल्यूज पर क्लिक करते हैं तो देयर आर 2 थिंग्स ओवर हियर. नो मिसिंग वैल्यूज क्लिक कर देंगे तो दैट मींस इट विल नॉट ट्रीट एनीथिंग एज अ मिसिंग वैल्यू इन दी डेटा. डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं लेगा. दूसरा क्या हमारे डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आई कैन राइट डाउन द वैल्यूज बाय ओन कि ये वैल्यूज जो हैं इनको वो उसको मिसिंग वैल्यूज ट्रीट करें. तो इट विल टेक दोज वैल्यूज एज द मिसिंग वैल्यूज. और अगर कोई रेंज है फिक्स्ड है, मतलब इतने से इतने तक का मुझे रेंज लेना है, तो आई कैन सिलेक्ट द रेंज एंड आई कैन गिव द लो टू हाई रेंज. और उसमें भी अगर कोई डिस्क्रीट वैल्यू हो तो आई कैन ऐड द डिस्क्रीट. ओके कर देंगे तो इट विल टेक दैट एज मिसिंग वैल्यू. सो Similarly is the column I have already told you basically. फिर alignment है आपका, फिर measures है. I think everyone knows this now. है ना? SPS open करने के बाद में I'll tell you how to create the SPSS file first. जिसको आना है वही लोग भी है बस. वही मैं सोच रहा हूँ. SPSS मैं इसको बंद कर रही हूँ. Restart it. Go to start. We have IQ SPSS statistic 20 options. Select on it. This is the first view of your SPSS, which gives you the look of Excel sheet. We have 2 views over here, data view and the variable view. Data view where you can see the data and variable view where you have to create the variable. So suppose if 3 digit मुझे चाहिए, तो I put 3 digits over here. तो ये मेरा हमारा डेटा. उसके बाद इसकी गिनती होगी, डेसिमल से नहीं है, इसमें डेसिमल सा 0. लेबल में is the roll number and roll number of list of values can be made. Enter. अगर एक बिट मतलब साइज होता है. किसका? जैसे बिट है, कितने कैरेक्टर्स हम लेते हैं. हाँ. जैसे अपन टाइप में जो डेटा साइज है वो साइज है या ये क्या है? साइज है. ये साइज है ना. तो अभी
जैसे अगर इसमें कितना बिट्स लगेगा? 1 2 3 या वैल्यूज कितनी? हाँ, जैसे मेरे को है ना एक 0 to 9 लूँ तो एक ही बिट में आ जाएगा। हाँ। अगर मेरे को 99 लिखना है तो 2 बिट। हाँ, तो अभी अगर हम इसको ले रहे हैं जेंडर को और मेरे को मेल फीड कराना तो मतलब मैं फीड कराना तो मेरे पास 4 डिजिट्स नहीं होनी चाहिए। वो अगर आप स्ट्रिंग में लेंगे, अच्छा अगर आप स्ट्रिंग में लिखोगे, जैसे मैंने मॉर्निंग में कराया था ना कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल को कोडिंग करेंगे, हम लोग 1 2 3 वैल्यू दे सकते मैं हैं। बीच में चली गई थी। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूंगी तो 1 2 3 तीन ही पॉसिबिलिटीज है, 1 for minute, 2 for minute, 3 for minute। इसलिए हमने 1 लिया। अगर आप मेल फीमेल करेंगे तो फिर ट्रांसजेंडर में जितने कैरेक्टर्स है ना, हाँ, उतना ही लेना पड़ेगा मैक्सिमम वाला। ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका। अगेन जेंडर इज, अब यहाँ पे आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो ये ऑर्डर तो नहीं है। अगर मैं इसको नॉमिनल रखूंगी तो भी मेरा काउंटिंग हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, आई कैन कीप इट इन द स्केल आल्सो। इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आई एम गोइंग टू यूज ऑन इट। सो यू कैन यूज द एनी वन ऑफ इट, नॉमिनल और स्केल। तो इस तरीके से आई कैन क्रिएट माय फाइल एंड आई कैन इनपुट द डेटा ओवर हियर। जैसे मेरा 23 डेटा है, यहाँ जेंडर 1 है। इस तरीके से मैं डेटा को क्रिएट कर सकती हूँ। अब इसके अंदर जितना डेटा डालूंगी तो वो फीड होता जाएगा और इस फाइल कैन बी सेव। फाइल में जाके सेव एज करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। सर मैंने वो सामने पीपीटी लगाई है आपके अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। आप जैसे आपको डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पे जाके आप इसको सेव कर सकते हैं, जो भी आप टाइटल्स सेव। I am not saving it because I am using some another type of data which is already there in the samples. Right? नोटिस खोलोगे ना तो Is that okay with everyone? Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है, अब हम लोग ऑलरेडी है ना जो SPSS है वो कुछ सैंपल फाइल्स हमें देता है। वो सैंपल फाइल्स इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसलिए हम अपनी फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वहाँ से उस सैंपल फाइल को खोलेंगे और उसी के ऊपर फर्दर सारे टेस्ट करेंगे। Now you can go to the फाइल में जाके आपका ओपन है, ओपन में डेटा, बिकॉज वी विल बी वर्किंग ऑन द डेटा नाउ। सो वी विल गो टू डेटा। डेटा में आप इस बात को बेशक से लिख लें जो लोग मतलब who are not aware about this software। सी में आप जाएंगे, सी में we have the program files। ओके, सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम IBM, because this is the software developed by IBM, then SPSS, then statistics, then 20, then samples and English. You will get many of samples which are available in the software itself. ये बहुत सारे sample files पड़ी हुई हैं, SME की बनी बनाई। तो कौन सी लेनी है इसमें से? कोई भी? आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। मैं एक सैंपल फाइल लेके चलती हूँ। आप जो बताओगे हम वही ले लेंगे ना। हमको मैंने वहाँ जो यूज की थी वो एम्प्लॉय वाली फाइल यूज कर रखी थी, तो मैं वही ओपन कर देती हूँ यहाँ पे। आप चाहे कोई भी खोल सकते हैं। जैसे कार इंश्योरेंस, कार सेल्स की फाइल है, मैं सपोज ये वाली खोल लेती हूँ। कार सेल्स लिया मैंने, ओपन कर दिया। ये देखिए, ये कार सेल्स की फाइल ओपन हो गया अभी में। आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, इसमें 157 का डेटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इट इज having the कार सेल्स not SME। क्या फाइल में ओपन में डेटा में सी ड्राइव, दोबारा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर IBM के अंदर SPSS is the statistics, फिर उसके बाद सैंपल्स के अंदर इंग्लिश।
She can select it, but card search नहीं काम करती. Everyone has opened the file. Now we will go for the descriptives. Analyze में जाइए. Analyze के अंदर descriptive second option में आपका frequencies. Now I want the frequency sources. मैम पीछे से बहुत आवाज आ रही है. Please keep silence. मैम 10 आपको पता है रिकॉर्डिंग नाम की भी एक चीज है. कितने 10 ओके बहुत माइन्यूटली इसलिए नहीं बताया बिकॉज़ क्लास में कवर हो गया तो आई थिंक एवरीवन नोस नाउ कौन से टाइप्स का क्या है. 2 घंटे में पूरा एक्सरसाइज करो. आपके ऊपर है आप प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम लेना चाहते हो. खत्म करना इज नॉट द मोटो. चाहे आप 2 ही चीजें सीखो लेकिन पूरे से सीख जाओ. ठीक है अब मुझे सपोज इन वेरिएबल्स के ऊपर है डेटा लगाना है. मैंने सपोज है स्टैटिस्टिक लगाना है और ये 2 पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए मॉडल और मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाना है. मैंने ये लिया स्टैटिस्टिक्स में गई. मुझे केवल मॉडल्स का है ना. इन जो मॉडल्स टाइप्स मैंने लिए इन्हीं के ऊपर कुछ करना है. क्या करूं मैं बताओ. मीडियन कुछ नहीं निकलेगा बिकॉज़ दोनों ही नॉमिनल वैल्यूज हैं. दोनों ही नॉमिनल है ना तो दोनों के ऊपर लगेगा ही नहीं. तो आई कम टू सम अनदर थिंग. देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग. प्राइस पे लगा सकते हैं. प्राइस इंक्रीज प्राइस और स्वागत मेल बेस रेट ये मैंने ले लिया. स्टैटिस्टिक्स अब मैं इनका मीन मीडियन निकाल सकता हूं. स्टैंडर्ड डिविएशन में निकाल सकते हैं. स्क्यूनेस में निकाल सकते हैं. कंटिन्यू करते हैं. अब कोई चार्ट इससे रिलेटेड आपको बनाना है. सपोज आई वांट द बार चार्ट. सेलेक्ट द बार चार्ट. फ्रीक्वेंसी के ऊपर आना चाहिए या परसेंटेज के ऊपर आना चाहिए है ना. फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी निकाल के देख लेते हैं. कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके ये आपका स्टैटिस्टिक्स बन के आ गया. फ्रीक्वेंसी के बारे में मीन मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्यूनेस ये लिया था. स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस क्या ये चार्ट्स भी बन के आ गए उसके इस तरीके से. आपका ये डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर आपकी एनालिसिस होती है. एनालिसिस के अंदर ऑप्शन लिया था. अब जैसे मैं अभी से बात करी थी अभी मुझे नहीं चाहिए. चार्ट्स में मुझे कोई और चार्ट चाहिए जैसे पाई चार्ट चाहिए. अब इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं. थोड़ा सा इसमें ये भी कर सकते हो. कैटेगरीज जो कम हो गई इसके ऊपर मैं चार्ट तो बना ही सकता हूं. I can go with that. I can select the chart and I can select the pie chart over here or histogram भी बना सकते हैं. परसेंटेज भी चाहिए नीचे उसी के हिसाब से डेटा देगा. पाई चार्ट मींस 100% का शेयर होता है.
Yes, should we move ahead? Yes, ma'am. इस तरीके से सेम आपको है ना डिस्क्रिप्टिव्स में आपका सेकंड ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव्स है, वो भी सिमिलर ही है, एक ही ऑप्शन की तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसीज था उसमें चार्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल था। डिस्क्रिप्टिव्स में केवल डिस्क्रिप्टिव्स ही हो पाएंगे। तो इसमें वी हैव द ऑप्शंस, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकेंड ऑप्शंस में वही ऑप्शंस है जो वहाँ पे हम यूज कर रहे थे, बस इसमें हम डिस्प्ले ऑर्डर वी कैन गेट वेरिएबल लिस्ट के हिसाब से चाहिए, अल्फाबेटिक चाहिए, असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा। अगर वो ऑर्डर लगाना है मुझे तो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, अदरवाइज वो ऊपर वाले ऑप्शन सारे सेम है जो फ्रीक्वेंसी में भी दिख रहा है। तो आई कैन से जैसे कि अल्फाबेटिक चाहिए क्वांटिटी ओके, जब रिजल्टेंट आएगा तो अल्फाबेटिक में ओपन करके एक ही लेंगे, एक वेरिएबल लिया Go to analyze descriptives. अब इसमें इंजन साइज पहले आ रहा है और स्टेप सेकंड और व्हीकल थर्ड, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया है। वो वहाँ एक था ना तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तीन दिए, एक पर वेरिएबल वाइज नहीं करना, अल्फाबेटिक। इस फाइल को अगर आपको आउटपुट फाइल को सेव करके रखना है तो गो टू फाइल सेव एज कर लेंगे, तो आप इस आउटपुट फाइल को सेव करके रख सकते हैं।